Hello everyone. Today we are starting with issue of shares, a chapter which carries a good percentage of your marks as weightage in this year's exam. The most important concept regarding this is going to be that how you proceed with the concepts and how you are able to apply these concepts to the new pattern of the exam, that is multiple choice questions. Today the first lecture is on issue of shares. Now before we proceed with the shares, कंपनी क्या होती है क्लास 11th के सिलेबस में होता है. In business studies we do study what is a company. A voluntary organization registered or incorporated under 2013 Companies Act. It is artificial legal person created in the eyes or existing in the eyes of law only, and containing those properties which are conferred upon it as per the charter of the company and what memorandum of association. Fine. Now if we are talking about an association of persons who contribute the money or money worth for some common goals, then we are talking about company. So now this is what the company is. Legally created organization, artificial separate entity it has. It can sue anyone, anybody can sue the company. It has its own existence. कंपनी अपने खुद के नाम में एसेट्स को परचेज कर सकती है. कंपनी अपने खुद के नाम में किसी से ट्रांजैक्शंस कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है. जस्ट लाइक अस, कंपनी कैन हैव इट्स ओन बैंक अकाउंट जस्ट लाइक अ लीगल एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल. ठीक. फिर इन बातों को ध्यान में रखते हुए देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर्स विच वी शुड बी अवेयर ऑफ. द फर्स्ट इज voluntary association, as you can see on the screen. Voluntary association मतलब nobody is forced to be the part of this. जो भी चाहे member बने, जो भी चाहे ना बने. Separate legal entity, just now we talked about. Members are different, company is different. They are totally distinct individuals. Fine. Now limited liability. Now this is something very important. यहाँ पे शेयर होल्डर्स के पैसे को लिमिट किया जाता है दैट दे विल बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली टू द एक्सटेंट दे आर होल्डिंग द शेयर्स इन द कंपनी और दे हैव देयर ओन शेयर इन द कंपनी. Their personal assets will not be put on stake. Then perpetual succession. Perpetual succession means what? Members may come, may go. Like JRD Tata started Tata Group or Tata Steels. Like Dhirubhai Ambani started Reliance. Today we have some other persons sitting in their chairs. लेकिन उसकी वजह से क्या वो कंपनी बंद हो गई? नहीं. Members may come, may go, may live, may die. Company remains as it is because it is a separate legal entity. Then कोई भी कंपनी होती है तो उसको गवर्न कौन करता है, उसको रन कौन करता है? उसको रन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अ सेट ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स विद देम. ठीक. वो अगर कुछ काम करते हैं कंपनी के बिहाफ पे तो उसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे? कोई काम कंपनी के बिहाफ पे किया गया है तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कॉमन सील की ज़रूरत पड़ती है, एक कॉमन सिंबल विच डिफाइंस दैट येस दिस इज समथिंग डन फॉर द company. Then comes transferability of shares. Yes, आज अगर मैं एक कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो मैं चाहूँ तो वो शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ. कैसे? जस्ट बाय सेलिंग देम इन द ओपन मार्केट. एंड देन जैसा अभी आपको पहले बताया सेपरेट लीगल एंटिटी के टॉपिक पे कि इंडिविजुअल है अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स, अपना एसेट होगा, अपना बैंक अकाउंट होगा, सब कुछ हो सकता है. तो वो एज एन इंडिविजुअल किसी को के ऊपर केस कर भी सकती कंपनी, कोई और भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है. सो दीज आर द फीचर्स
that define a company. Now, if we classify them, we can classify them on the basis of two basic categories. First, on the basis of members' liability, as you can see, there are three categories under that, and the other one is on the basis of number of members. On the basis of members' liability, अगर members की liability के context में बात करें तो whatever number of shares do they have, whatever number of shares the members are holding, on that basis we have the liability fixed for those members. आपके अगर 10,000 रुपये के नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं, फेस वैल्यू के 10,000 रुपीज़ के शेयर्स हैं, तो आपसे 10,000 से ज़्यादा पैसे नहीं मांगे जाएंगे इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. Whereas in the case of guarantee, that is a limited by guarantee company, these are the companies that are basically for that amount that is being guaranteed by the members. For the purpose, again, the personal liability will not be, personal assets will not be called into the process. Whereas in unlimited companies, there is no such binding, there is no such barrier. एक शेयर होल्डर के या मेंबर के पर्सनल एसेट्स को भी कॉल अपॉन किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी. एंड यस, गारंटी कंपनीज में, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज में, वी नेवर कॉल द मनी एक्सेप्ट इन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. मतलब जब हम कंपनी को बंद करने चलेंगे, जब हम कंपनी को वाइंड अप करने चलेंगे, सिर्फ तब पैसे मंगाए जाएंगे, वो भी जो अश्योर्ड या फिक्स्ड अमाउंट तय किया गया है पहले से. द पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स दे हैव इन देयर बोर्ड. ओके, देन वी मूव टू शेयर कैपिटल. नाउ व्हाट इज शेयर कैपिटल? कंपनी जैसा कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपनी खुद की अपने पॉकेट से तो पैसे निकाल नहीं सकती, क्योंकि वो तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती. तो कंपनी की कैपिटल इज टू बी कंट्रीब्यूटेड और ब्रॉट इनटू बाय सेवरल सोर्सेस, सेवरल पीपल, सेवरल पर्सन्स. और हर उस इंडिविजुअल को क्या बोला जाता है? एवरी सच इंडिविजुअल इज कॉल्ड शेयर होल्डर. व्हाट डू वी कॉल इट? शेयर होल्डर. यस. अब वो जो पैसा लाएंगे, वो जो पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी में, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड शेयर कैपिटल. ठीक. Now, all that amount which will be collected from these people, what will be the way to deal with that? कैसे उसको हैंडल करेंगे? बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारा फंड आएगा, तो अब उस सबको एक कॉमन अकाउंट बना दिया जाएगा. कंपनी अपने अकाउंटिंग सिस्टम में एक अकाउंट क्रिएट करेगी, नाम होगा शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो सारा पैसा वहाँ पे कंट्रीब्यूट हो जाएगा. ना, अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल. कितने तरह की शेयर कैपिटल्स हो सकती हैं? सबसे पहले देखिए क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट शेयर कैपिटल, इट इज़ अ स्टोरी गोइंग ऑन. तो पहली स्टोरी, एक सीक्वेंस होता है. स्टोरी में जैसे एक स्टोरी लाइन होती है ना, सीक्वेंस होता है, तो वैसे ही है यहाँ. अब यहाँ पे किस तरीके से है वो देखिए. सबसे पहले कंपनी का जन्म होता है, रजिस्टर होती है कंपनी, तो रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल, जो आपका ये दिख रहा है सबसे ऊपर. ना दिस ऑथराइज्ड कैपिटल इज व्हाट? ये वो अमाउंट है जो, जिस अमाउंट से, द अमाउंट विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, क्लास 11 में पढ़ा है हम लोगों ने. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देयर आर 5 क्लॉजेस. वन इज यस कैपिटल क्लॉज. तो उसमें एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दी हुई है जो कि एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में क्रिएट कर सकती है बाय इशू ऑफ शेयर्स. ठीक. और वो कितने अमाउंट्स में डिवाइडेड होगी, कितने डिनोमिनेशंस में डिवाइडेड होगी, मतलब हर पार्ट की वैल्यू क्या होगी, वो भी उसमें मेंशन होता है. दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल. नाउ आउट ऑफ दैट ऑथराइज्ड कैपिटल, हाउ मच अमाउंट a company is issuing to the public. Company is inviting the public to come and purchase the shares or invest in the business. वो कहलाएगा issued capital. मतलब कि कितना issued capital के तौर पे कंपनी ने
पब्लिक से पैसा इन्वाइट किया। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल के बाद आती है, मतलब पब्लिक को मान लीजिए कि 10 लाख रुपए से शेयर्स ऑथराइज थे, कंपनी ने 9 लाख रुपीज़ के शेयर्स ऑफर किए। अब उसमें से 9 लाख में से 9 लाख की कैपिटल आ गई कंपनी के पास, मतलब एप्लीकेशंस आ गई इतनी कि पूरे 9 लाख रुपीज़ कंप्लीट हो गए, तो दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक। अब उसमें से कंपनी कितने पैसे मंगवाती है, कितना पैसा कॉल अपॉन करती है, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। भाई 100 रुपीज़ का एक शेयर है, कंपनी ने पूरे पैसे मंगा लिए एक बार, या इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज डिसीजन, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। फिर आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब दैट अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर। मतलब अगर आउट ऑफ 100 रुपीज़ अगर 70 रुपीज़ कंपनी ने इस साल मंगवाए और उसमें से शेयर होल्डर ने 60 रुपीज़ का पेमेंट किया, तो वो 60 रुपीज़ पेड अप होगा, 70 कॉल्ड अप होगा। ओके, एंड देन कम्स दिस इज अनकॉल्ड कैपिटल। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अनकॉल्ड कैपिटल क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है जो कि अभी कंपनी ने नहीं मंगवाई। जैसे कि अभी हम लोग ने बात की आउट ऑफ 100 रुपीज़ शेयर कैपिटल, अभी 30 रुपीज़ अनकॉल्ड अमाउंट है, वो अभी पेंडिंग है। ठीक। एंड देन व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी रिजर्व्स। कंपनी ने इशू ही नहीं किया, भाई ये पैसे तो हम तब मंगवाएंगे शेयर होल्डर से जब हम वाइंड अप कर रहे होंगे, लेटर ऑन स्टेज पे रिजर्व कर दिया वो कैपिटल, वो हम कहीं टच ही नहीं कर रहे। दिस इज दैट कैपिटल। ठीक। देन सी दिस फ्लो चार्ट। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, इशूड एंड अनइशूड। इशूड में सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड होते हैं। अब फिर जो अनसब्सक्राइब हुआ वो तो ख़त्म हो गया, जो अनइशूड है वो ख़त्म हो गया। फिर सब्सक्राइब कैपिटल में से कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल दो हिस्से हो गए। कॉल्ड अप कैपिटल में दो पार्ट आ गए, पेड अप कैपिटल मतलब जितना पैसा आ गया, कॉल्स इन एरिया मतलब जितना पैसा नहीं आया, और फिर अनकॉल्ड कैपिटल में जो पैसा नहीं आया है उसमें दो पार्ट हो गए, कुछ अनरिजर्व्ड है, कुछ रिजर्व्ड है। फाइन। ना शेयर्स को हम शेयर्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन पढ़ी थी किसी एक एन.डी. कपूर साहब की किताब में, लॉ की फील्ड के बड़े अथॉरिटी माने जाते हैं। उसमें उन्होंने कहा था शेयर इज़ द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब शेयर क्या है? पूरी शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है, एक शेयर है, एक टुकड़ा है, एक यूनिट है। ठीक है। और इस बेसिस पे ओनरशिप क्रिएट होती है आपकी किसी भी कंपनी में। अब किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप उसकी ऑथराइज कैपिटल मेंशन कर देते हैं, साथ ही ये भी मेंशन करते हैं कि वो कितने अमाउंट के कितने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइडेड है, एंड दैट इज़ व्हाट द कैपिटल क्लॉज कंटेन्स। ठीक ना। क्लासेस ऑफ शेयर्स मतलब कि देयर कैन बी बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट विल बी प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड विल बी इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स हम किसको इशू करते हैं? डायरेक्टर्स को, उनके क्लोज रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को। मतलब वो एक बहुत लिमिटेड सर्कल, बहुत प्रेफर्ड क्लास के लोगों को दिया जाता है, भाई उनको दिया जाए। इट इज़ नॉट फॉर आम जनता पीपल। ओके, हम हर किसी के लिए नहीं देते। जबकि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर होते हैं, किसी को भी इशू करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, लेकिन रियल ओनर्स यही लोग होते हैं। ठीक है ना। दे आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। सी, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड में प्रेफरेंशियल राइट होता है, पहले उनको दिया जाता है। फिर फिर कल को कंपनी बंद हो रही होगी, वाइंड अप हो रही होगी, तो पैसे जब लौटाने होते हैं तो भी इनको पहले दिया जाता है, इक्विटी शेयर्स को बाद में दिया जाता है। ठीक है ना। अब प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली 3 ग्रुप्स होते हैं, 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, दैट मीन्स दे कैन बी पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग और नॉट, लाइक दैट। Cumulative, non-cumulative on the basis of the dividend they are carrying. Redeemable or not irredeemable, that means on the basis of the fact कि क्या इनके पैसे वापस होंगे या नहीं होंगे, उस बेसिस पे होता है। Then comes we talk about the equity shares. क्या है equity shares? ये वो जो कि preference shares नहीं है। That's a very interesting definition.
क्योंकि जो प्रेफरेंस नहीं वो इक्विटी है, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज देयर इज़ नो अदर कैटेगरी ऑफ दिस। इनको इन बेचारों को कोई राइट नहीं होता, किसी तरह का कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, ना डिविडेंड में, ना पैसों की वापसी में, कहीं कुछ नहीं। और इनके केस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल या जो भी हमारा फ्री होने के बाद, सारे ऑब्लिगेशन से फ्री होने के बाद जो पैसा बचता है, जो कह लो कि प्रॉफिट का पार्ट बचता है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम। वो भी कब? जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सारा राइट, सारा एंटाइटलमेंट फुलफ़िल कर दिया गया, जब उनको पूरी तरह से फ्री कर दिया गया, जब उनको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया, उसके बाद जो बचेगा वो हम देंगे किसको? इक्विटी शेयर्स को। इनके डिविडेंड्स फिक्स नहीं होते, तो कभी स्काई हाई मिलते हैं, कभी कुछ नहीं मिलता। आई रिमेंबर एक साल ONGC लिमिटेड ने, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने 300% का डिविडेंड दिया था। कोई कोई साल कुछ कंपनीज बिल्कुल 0% देती हैं, या 20-30%। दैट इज़ टोटली वेरिएबल, इट इज़ नेवर डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द प्रॉफिट। ठीक। और इक्विटी शेयर्स वोटिंग राइट कैरी करते हैं, और they the holders are called the true owners of the company. Okay, so in the next lecture we'll talk about further concepts of this chapter, and we'll also introduce you to the journal entries. It's going to be very interesting, so keep in touch. God bless.